नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नयन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि किसानों ने केंद्र सरकार का न्योता स्वीकार कर लिया है। बैठक से पहले किसानों की केंद्र को चेतावनी भी है कि कल बात नहीं बनी तो 26 नवंबर को दिल्ली का घेराव करेंगे। कृषि कानूनों पर आर पार की लड़ाई के मूड में किसान संगठन नजर आ रहे हैं। 26-27 नवंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली से प्रदर्शन करेंगे। दिवाली के दिन मशाल जलाकर प्रदर्शन करेंगे किसान। जब तक जीत नहीं होगी तब तक संघर्ष करते रहेंगे। ये किसान संगठनों की तरफ से एक बार फिर से कहा गया कि जब तक जीत नहीं होगी तब तक उनका संघर्ष भी जारी रहेगा। रेल मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे, ये यूनियन की तरफ से कहा गया। पंजाब में रेलगाड़ियां चलाने को लेकर भी बात की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान संगठनों की बैठक के बाद ये खबर की किसानों ने केंद्र सरकार का न्योता कबूल कर लिया है बैठक से पहले, लेकिन किसानों ने केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी है। कहा कल बात नहीं बनी तो 26 नवंबर को दिल्ली का घेराव करेंगे। कृषि कानूनों पर अब किसान संगठन आर पार की लड़ाई के मूड में है। 26-27 नवंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली से प्रदर्शन किया जाएगा और दिवाली के दिन मशाल जलाकर प्रदर्शन किया जाएगा। चंडीगढ़ च किसान आगुआं की मीटिंग हुई है। कल दिल्ली च होने वाली मीटिंग नूं लैके हरमीत कादियां साडे नाल ने। कादियां साहब, की कुछ चर्चावां होईयां जिहड़ी कल मीटिंग होण जा रही है दिल्ली दे विच, उहनूं लैके किन्ने आसमंद हो और की कुछ मुद्दਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चर्चा हुई है? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਸਮੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਅੜਬ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਭਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਾਅ ਤੋੜੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਦੇ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੇਲਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੋਣ? ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਹਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬਈ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ।
ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਤ ਆਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਚਲਾਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ GST ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੋਂ 26 ਔਰ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ? ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਊਗੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। 26 27 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖ ਰਹੇਗੀ? ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਅਗਲੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਾ ਪਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਗੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਬੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼। तो किसान संगठनों की बैठक थी, रणनीति बनाई गई कि आगे इस मसले को कैसे पहुंचाना है और कैसे इस संघर्ष को जीत में तब्दील करना है। किसान संगठनों ने यह भी साफ कर दिया कि केंद्र का न्योता स्वीकार है, लेकिन साथ ही चेतावनी कि अगर बात नहीं बनी इस बैठक में भी तो फिर 26 नवंबर को दिल्ली का घेराव करेंगे। 26-27 नवंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ प्रदर्शन करेंगे। और किसान नेता जिस तरीके से अपनी बात रख रहे थे, उससे साफ है कि वो हर हाल में कृषि कानूनों के खिलाफ खड़े हैं। केंद्र सरकार को उनकी मांगे स्वीकार करनी पड़ेंगी और जब तक मांगे स्वीकार नहीं होंगी तब तक वो यूं ही धरना प्रदर्शन, अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और दिवाली के दिन भी मशाल जलाकर प्रदर्शन करने का फैसला किसान संगठनों ने किया है। मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ इसी बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं। नपिंदर, किसान जत्थेबंदियों ने एक बार फिर से अपने तेवर दिखा दिए हैं कि केंद्र का न्योता जरूर स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अगर बात फिर भी नहीं बनती इस बैठक में भी, तो आगे वो अपना संघर्ष कुछ अलग तरीके से जारी रखेंगे। क्या लगता है, क्या किसान संगठन अब एक नई लड़ाई के मूड में है? कि साडे दिल्ली जाने का मकसद यह है कि क्योंकि कल नूं ऐसा ना होवे कि कहण कि पंजाब दे किसानां नूं बुलाया सी पर कोई गलबात करने लई राजी नहीं होया। किसान कहंदे ने असीं दिल्ली जावांगे, केंद्र सरकार दे नाल गलबात करांगे, उन्हां दी भी सुणांगे ते अपनी भी सुणावांगे, पर तां साडी सहमति बननी है जे ਜਿਹੜੇ केंद्री खेती कानून ने उन्हां नूं सरकार वापस लैंदी है। नाल ये भी कह दिता कि जे कल कोई कल किस तरह की मीटिंग दे विच किस तरह के हालात बनते हैं कि केंद्र की ਜਿਹੜੀਆਂ केंद्र की प्रपोजल है कि किसानों ਨੂੰ पसंद आउंदी है ਜਾਂ किसानों की प्रपोजल केंद्र ਨੂੰ पसंद आउंदी है, उस चीज़ ਤੇ चर्चा ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ और करी फिर तो मीटिंग की जाएगी। फिर 18 नवंबर ਨੂੰ एक नवी मीटिंग ਜਿਹੜੀ एडवांस रख ली गई है। 18 नवंबर ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਆ ਕੇ किसान मीटिंग ਕਰਨਗੇ। उस मीटिंग तो बाद ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ऐसा नहीं मन्निया जा सकता कि कल की मीटिंग में सारियां चीज़ां हल हो जान। किसान ऐसा कहते हैं, कल एक शुरुआत होने की उम्मीद है। लेकिन किसानों ने भी अपनी रणनीति यहाँ पर बता दी है कि वो बात नहीं बनने तक डटे रहेंगे। शुक्रिया नपिंदर, तमाम जानकारी के लिए। किसान जथेबंदियां एक बार फिर से एकजुट नजर आ रही हैं, बैठक कर रणनीति बनाई और साफ कहा केंद्र का न्योता स्वीकार है, लेकिन केंद्र ने अगर बात नहीं मानी तो एक बार फिर से वो अपना संघर्ष तेज कर देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड एक्टर आसिफ बसरा ने खुदकुशी की है। धर्मशाला में अपने घर में मौत को गले लगाया है। प्रारंभिक जांच में डिप्रेशन का शिकार बताए जा रहे थे। आज दोपहर अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए निकले जरूर थे बसरा। घर वापस आकर पालतू कुत्ते की रस्सी से ही उन्होंने फंदा लगाया। अमेरिकन कॉमेडी मूवी आउटसोर्सर्ड से उनको पहचान मिली थी। यूके की महिला के साथ बताया गया है कि लिव इन में रह रहे थे। पिछले 4 से 5 साल से धर्मशाला में ही आसिफ बसरा रह रहे थे और यहीं पर उन्होंने मौत को गले भी लगाया है। धर्मशाला के खड़ा डंडा रोड पर अपने घर पर फंदा लगाकर जान दी है। धर्मशाला में लीज पर यह मकान उन्होंने ले रखा था। धर्मशाला से मेरे सहयोगी विचित्र शर्मा फोन लाइन्स जुड़े हैं इसी खबर पर और जानकारी के साथ। विचित्र, जानना चाहते हैं क्या जानकारी मिल पाई है अभिनेता आसिफ बसरा की आत्महत्या के मामले में? देखिए सुदेश, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अभी जो है वो पुलिस पूरी तरह से सर्च कर रही है, सुसाइड नोट ढूंढ रही है कि क्या जो फिलहाल तो उन्होंने प्रिलिमिनरी जो बताया है कि डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन की वजह से जो है वो इनकी मौत हुई, इन्होंने मौत को गले लगाया है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जो है वो पूरी तरह से यहाँ सर्च कर रही है कि कहीं आर्थिक तंगी का माहौल तो नहीं था। और वो बीते इतने सालों से यहाँ पर रह रहे थे और जिनके साथ वो रह रहे थे, यानी लिव इन में रह रहे थे, ब्रिटेन की एक महिला के साथ वो लिव इन में रह रहे थे बीते 4-5 सालों से। तो उनसे भी चूंकि पूछताछ जो वो पुलिस करेंगी, हालांकि वो अभी कुछ भी बताने के हालात में नहीं है, मूड में नहीं है। बावजूद इसके पुलिस जो है उनसे जरूर पूछताछ करेगी। लेकिन हाँ, पुलिस पूरी तरह से यहाँ पूरी सजगता, पूरी गहनता के साथ जो वो छानबीन कर रही है, इसलिए क्योंकि बीते 4-5 साल से वो यहीं रह रहे थे या फिर किसी काम के सिलसिले से वो बाहर जाते थे। अगर वो बाहर जाते तो क्या वापस वो फिर यहीं आते थे या फिर उनका यहाँ रहने का मकसद और क्या था? हाँ, बड़ी बात तो यह है कि धर्मशाला में ही उन्होंने 2 बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो लीज पर ले रखी थी। यहाँ पर ये बात समझ नहीं आ रही कि 2 प्रॉपर्टी उन्होंने लीज पर ले रखी थी, जबकि वो एक में ही रह सकते थे क्योंकि एक ही महिला के साथ वो यहाँ पर रहते थे। और जिस प्रॉपर्टी में उन्होंने अभी फंदा लगाया है वो प्रॉपर्टी भी बहुत बड़ी है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिनको पुलिस जो है वो तमाम सारे तथ्य हैं जिनको पुलिस देखेगी, जिनकी जांच पड़ताल करेगी। लेकिन फिलहाल जो हमारी एसपी विमुक्त रंजन से बातचीत हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि प्रिलिमिनरी हम यही कह सकते हैं कि डिप्रेशन वजह थी और डिप्रेशन की वजह से जो है इन्होंने मौत को गले लगाया है, खुदकुशी की है। सुरेश, शुक्रिया विचित्र जानकारी के। तो इस मामले में पुलिस जांच कर रही है कि क्या हालात रहे कि आसिफ बसरा ने मौत को गले लगा लिया। लेकिन जानकारी कि 4 से 5 साल हो गए थे उनको यहाँ रहते हुए और खड़ा डंडा रोड पर उन्होंने मकान ले रखा था। लीज पर 2 मकान उनके थे, यहीं पर एक मकान में उन्होंने फांसी का फंदा लगाया। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो डिप्रेशन में जरूर थे। आज दोपहर अपने पालतू कुत्ते को घुमाने निकले और फिर उसके रस्सी से ही उन्होंने फांसी का फंदा बनाया। अगली बड़ी खबर पानीपत से, जहां आग का तांडव देखने को मिला। हैंडलूम के शोरूम में भीषण आग लग गई। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कड़ी मशक्कत के बाद किस तरीके से अब जानकारी यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। पानीपत से यह बड़ी खबर, जहां आग का तांडव दिखा। हैंडलूम के शोरूम में भीषण आग लग गई। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ही इस आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीच बाजार, कैसे हैंडलूम के शोरूम में ये भीषण आग लगी हुई है। कड़ी मशक्कत फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को करनी पड़ी इस आग पर काबू पाने के लिए। हैंडलूम का ये शोरूम है जहां पर आग लगी थी पानीपत में और दमकल की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया।
शॉर्ट सर्किट हुआ है जी, बिल्कुल थोड़ी सी फायर थी, लड़के गए हैं सारे ऊपर बुझाने के लिए, एकदम फैली, इमीडिएट फोन कर दिया जी फायर ब्रिगेड को। इसको सारा जो श्रेय है ना फायर ब्रिगेड को जाता है जी, आग का जी जो हमारा नुकसान हुआ ना जी, सारा श्रेय फायर ब्रिगेड को है। पड़ोसियों ने सबने इतने फोन किए। हमें आग की सूचना मिली गई, अमर भवन चौक में एक दुकान में आग लगी। हमारे जाम इतना था सारे शहर में, आगे यहाँ तक आने में 20 मिनट लगी। वो भी पुलिस की मदद से, ट्रैफिक पुलिस की मदद से हम यहाँ तक पहुँचे। त्योहार का सीजन है, बाजार में बहुत भीड़ है, हम पहुँच गए, आग पर काबू पा लिया। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की हार के बाद गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि बीजेपी को जेजेपी के सारे वोट ट्रांसफर नहीं हुए। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का दावा है कि जेजेपी की बदौलत ही योगेश्वर दत्त को 50,000 से ज्यादा वोट मिले। बड़ौदा उपचुनाव के रण में बीजेपी और जेजेपी ने सांझे उम्मीदवार के तौर पर पहलवान योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा। योगेश्वर के प्रचार के लिए सत्ताधारी बीजेपी और जेजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी कांग्रेस उम्मीदवार इंदु राज ने पहलवान को हरा दिया। इस हार को लेकर बीजेपी और जेजेपी में मतभेद सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कह रहे हैं कि अगर जेजेपी का वोट ट्रांसफर हो जाता तो योगेश्वर कभी नहीं हारती। बड़ौदा में हम हार कर भी जीते हैं और उसका सीधा संकेत मेरा यह है कि आज तक हमें उस सीट पर किसी भी चुनाव में, चाहे विधानसभा का रहा हो चाहे लोकसभा का रहा हो, 50,000 से पार कभी वोट नहीं मिले थे। पूरा मिलता तो हमारे वोट 80,000 के आसपास हो जाते, 70-75,000 के आसपास हो जाते। तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर से उधर जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान पर दुष्यंत चौटाला ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। दुष्यंत ने कहा, अगर जेजेपी का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ तो योगेश्वर दत्त को 50,000 से ज्यादा वोट कैसे मिल गए। योगेश्वर ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 50,000 से ज्यादा वोट बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिए हैं। ये जनता का प्यार है। जो गठबंधन की सोच थी, उस सोच के प्रति वोटर टर्नआउट उस प्रतिशत तक नहीं पहुंचा। जेजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, इसको लेके तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसका वोट किसको ट्रांसफर हुआ ये तो आप सबको भी पता है। बहरहाल अभी बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को काम करते पिछले महीने अक्टूबर में साल ही हुआ है, लेकिन बड़ौदा हार के बाद गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि बड़ौदा हार के और कौन कौन सी साइड इफेक्ट्स सामने आते हैं। चंडीगढ़ से मनोज कुमार के साथ पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, हर तरफ मुस्कुराते चेहरे हैं। लॉकडाउन के बाद लोग खुश हैं, लेकिन आपकी जरा सी गलती आपकी खुशियों को ग्रहण लगा सकती है। त्योहारों पर कोरोना की नजर, जरा सी गलती पड़ सकती है भारी। त्योहार मनाएं लेकिन महामारी ना भूलें। अभी तक लाखों लोग गंवा चुके हैं जान। देश दुनिया में कोहराम मचाने वाली इस महामारी को मत भूलिए, क्योंकि कोरोना काल में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और यकीन मानिए अगर नहीं संभले तो ये रफ्तार देश की चिंता बढ़ा सकती है। फेस्टिवल सीजन है और लगातार जो लोगों का रश मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। अभी हम खड़े हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 19 की मार्केट के बाहर, जहां पर भीड़ देख सकते हैं। हालांकि कई लोगों ने मास्क पहने हैं, कईयों ने नहीं पहने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ। पंजाब में एक वक्त हालात चिंताजनक हो गए थे, नौबत लॉकडाउन तक लगाने की हो गई थी, लेकिन हालात संभले। अभी भी हालात संभले हुए हैं। मैं इसलिए मौजूद हाँ लुधियाना दे मिलरगंज बाजार दे विच, जिथे तस्वीरें मैं तुहानूं दिखाना चाहूँगा कि लोग किस कदर इस वेले लापरवाही दिखा रहे हैं, जबकि कोरोना महामारी हजे तक खत्म नहीं हुई है और लोगों ने मास्क तक लाने शुरू करते हैं ते उन्हां दे मूँह के उत्ते जिहड़े मास्क हुण नहीं दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर जिहड़े लोग ने बिना मास्क तो ही घूम रहे हैं और
ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। उसके बाद कोविड की पहली लहर ढलान पर आ गई, लेकिन दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली, क्रिसमस में फिर कोरोना पीक पर होने का अंदेशा है। थोड़ा से लोगों से कहना चाहूँगा, अभी क्योंकि बाज़ारों का सीज़न है, बाज़ार में लोग जाएं तो जहाँ तक संभव हो भीड़ भाड़ वाले जगह ना जाएं। एक, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। दूसरा, अगर जाना भी पड़े बाज़ार में तो मास्क इस्तेमाल करें और शारीरिक दूरी का जरूर इस्तेमाल करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कह चुके हैं कि त्योहारों पर बड़े समारोहों से बचें, वरना बड़ी परेशानी आ सकती है। अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक त्योहार ही त्योहार है। ऐसे में लोग बाहर ज्यादा निकलते हैं, खरीदारी करते हैं, परिचितों रिश्तेदारों से मिलते हैं। कोरोना काल में त्योहारों के सुपर स्प्रेड इवेंट बनने का खतरा है। पिछले दिनों ओणम और गणेश चतुर्थी पर भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक तरीके से पालन नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में कोविड के मामले तेजी से बढ़े। त्योहारों की शुरुआत है और इसी के साथ शुरू हो गई है घर से लेकर खुद को सजाने और संवारने की तैयारियां। लेकिन संवारने के साथ ऐसे इंतजाम करना मत भूलिए जिससे कोरोना आपके घर में दस्तक ही ना दे पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हम दिन में 4 से 5 बार हाथ धोते हैं, लेकिन महामारी के दौरान लोग 10 से 12 बार हाथ धो रहे हैं। ये हमारे पानी की कमी को बढ़ाता है। मिशन पानी के हिस्से के रूप में हम आपके लिए ऐसे नवाचारों की जानकारी लाते हैं जो पानी बचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आज IIT चेन्नई द्वारा इंक्यूबेट किया गया एक इनोवेशन है जो हैंड वॉश करते वक्त 90% नल का पानी बचाता है। हम औसतन दिन भर में 4 से 5 बार हाथ धोते थे, लेकिन महामारी के दौरान इस आंकड़े में इजाफा हुआ। हम जब भी हाथ धोते हैं काफी ज्यादा पानी बर्बाद होता है, क्योंकि सिर्फ एक तह तक पानी का इस्तेमाल होता है, बाकी पानी नीचे गिरकर बर्बाद होता है। हमने एटोमाइजेशन की तकनीक से ये प्रोडक्ट तैयार किया है, जिससे पानी की हर एक बूंद लाखों और करोड़ों में तब्दील हो जाती है। इस प्रक्रिया के चलते लगभग 95% पानी की खपत हो जाती है। एक मामूली नल से आपको 1 मिनट में 10 से 15 लीटर पानी मिलेगा, जबकि हमारे प्रोडक्ट से आपको हर मिनट सिर्फ 500 मिलीलीटर पानी मिलेगा। यही फर्क है नॉर्मल फ्लो और हमारे प्रोडक्ट में। इस एटोमाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खास तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में कूलिंग और सेटलिंग के लिए किया जाता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल घरेलू कामकाज में भी हो, जिससे पानी की बचत हो और एक नया बदलाव आ सके। हमारे ये वाटर सेवर किसी भी नल में लगाया जा सकता है। मेरा लक्ष्य है कि भारत के हर एक कोने तक हम पहुंचे। हम चाहते हैं हमारा ये प्रोडक्ट सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में इस्तेमाल हो, कम्युनिटी शौचालय में इस्तेमाल हो। आपको बता दें कि ऐसा करने से पानी काफी मात्रा में बचाया जा सकता है। एक कंपनी ने 30 लाख देकर हमारा प्रोडक्ट खरीद लिया और अपने सारे दफ्तरों में प्रोडक्ट इंस्टॉल कर दिया। ऐसा करने से सालाना उन्होंने 45 करोड़ की बचत की। उन्होंने सिर्फ पैसा ही नहीं बचाया, बल्कि एनर्जी जैसे बिजली भी बचाई।